Rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is about the respiratory system. आज हम respiratory system के बारे में पढ़ेंगे. Breathing, pulmonary ventilation, the capacity and volume of the lungs. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. So हम start करते हैं the respiratory system. Respiratory system का जो definition है वो हम इस तरह करते हैं. The inhale, the intake, the inspiration of oxygen and the exhale or the expiration of carbon dioxide, due to which the energy, the ATP is breakdown. That process is called respiration. इसमें एनर्जी ब्रेक डाउन हो रहा है और एक ब्रीथिंग है जो जिसे वेंटिलेशन कहते हैं. जो ब्रीथिंग है वो जस्ट द पैसेज ऑफ एयर. ये जो ट्रैक है इस ट्रैक में ऑक्सीजन जो पास हो रहा है, जो पैसेज है, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. मींस ब्रीथिंग इज जस्ट द पैसेज ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and respiratory system is the inhale and exhale of oxygen, due to which the energy is breakdown. Okay, so the respiratory system is start from the nostril or from the oral cavity. It's the part, हम part के बारे में अब पढ़ेंगे. The first part of the respiratory system is the nostril. The nostrils, two nostrils. From the nostrils, the second part is the pharynx. Pharynx is also the passage. ये pharynx जो है for both है, फूड पार्टिकल भी इसी पास होंगे और एयर भी, दोनों के लिए ये pharynx है. ओके, pharynx के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं larynx. Larynx is the next part of the respiratory tract. Larynx is also called voice box. इसे हम voice box भी कहते हैं. larynx. ये स्ट्रक्चर मैंने इधर बड़ा बनाया है, जूम करके बनाया है. ओके, so this is the larynx. This is also called voice box. ओके, ये कार्टिलेज से बना है. डिफरेंट कार्टिलेज है जिसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड कार्टिलेज पड़े हैं वॉइस बॉक्स में. ओके, जो अनपेयर्ड कार्टिलेज इसमें पड़े हैं, द कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट इन द लैरिंक्स कॉल्ड द थायराइड कार्टिलेज. Thyroid cartilage. The other cartilage is the cricoid cartilage. And the third one is the glottis. ये तीन कार्टिलेज वॉइस बॉक्स में पड़े हैं जो अनपेयर्ड है, और तीन और कार्टिलेज जो पड़े हैं वॉइस बॉक्स में वो पेयर्ड है. दिस इज द cuneiform cartilage. The other cartilage is the cuniculate cartilage. And same like in the others, both side पे जो है cuneiform, cuniculate, and the third one is the arytenoid cartilage. So this is the three type of cartilage which is present in the paired in the larynx, and the unpaired which is the thyroid, cricoid and glottis. So this is also called the voice box. This region, this is called the vocal cord. This is the vocal cord. When the vocal cord vibrate, then the sound is produced. जब ये vibrate होगा vocal cord, तो sound produce होगा. Okay? The opening of the vocal cord, this is called the epiglottis. The opening of the vocal cord, the opening of the larynx is called the epiglottis. So this is the parts of the larynx.
This is the part of the voice box. Okay. The next part is the trachea. Trachea is the hyaline cartilage rings which is extend from the larynx to the lungs. ये trachea जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. Trachea 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कार्टिलेजिनियस पार्ट है जो हाइलिन कार्टिलेज से बना है, which is made up of 20 rings. 20 rings of cartilage, हाइलिन कार्टिलेज से बना है जो कि 20 rings है और एक्सटेंड कर रहा है लैरिंक्स से लंग्स तक. ओके. हाँ. The trachea is further divided into two bronchi. The one is bronchus and the two are bronchi. So the trachea, this is the trachea, and these two are the bronchi. Bronchi. The trachea is divided into two bronchi for each lungs. Okay. These bronchus enter to the lungs through the hilum of the lungs. ये जो concavity बन रहा है lungs का, इसके थ्रू जो है ये trachea एंट्री करेगा lungs में. The bronchi is further divided into the following parts to the primary bronchi, secondary, tertiary, quaternary bronchi. Okay. Then into the alveoli, then alveolus, the alveolar duct and alveolar sac finally. Okay. So this part, this is the upper respiratory tract, and this part, this is the lower respiratory tract. Okay. So the bronchi is further divided into the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi and quaternary bronchi, which is the terminal branch of the respiratory tract. The final is the terminal branch. Terminal branch of the respiratory tract. From the terminal branch, the alveoli start. This part is the alveoli. The next part from the alveoli is the alveolar duct. And the last part is the sac, which is called the sac. The alveolar duct, the sac is the cluster of grapes. अंगूर का जो गुच्छा है उस तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम कहते हैं alveolar sac. ओके. इस सैक में जो है गैसेस एक्सचेंज करेगा. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे होगा? alveolar sac में. ये सैक मैंने यहाँ पे बनाया है. दिस इज द alveolar duct एंड दिस इज द alveolar sac. ओके. जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, O2 को हम इनहेल करेंगे तो इस ट्रैक इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा. ओके. हाँ. जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कैपिलरीज आए हैं सारे, दी पल्मोनरी कैपिलरीज. लेट्स सपोज दिस इज दी कैपिलरीज. ओके. अब ये कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें CO2 भी प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में अब प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ इस सैक में प्रेजेंट है. इस सैक में ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है और CO2 लो कंसंट्रेशन में है. इस ब्लड में, इस कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है उस ब्लड में CO2 हाई कंसंट्रेशन में है और ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में है. तो अब इधर क्या सीन होगा? फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन ये एक्सचेंज होगा. तो अब ये जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इन दिस कैपिलरीज, यहां पे आएगा. ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा कैपिलरीज. सो कैपिलरीज में ऑक्सीजन आएगा और जो CO2 प्रेजेंट है वो सैक में चला जाएगा. CO2 यहां पे आएगा.
CO2 जो वेस्ट है वो तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, इसी डक्ट के थ्रू हम एक्सहेल करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे, और जो ऑक्सीजन है वो इसी जो कैपिलरीज है, जो स्मॉल कैपिलरीज है वो कनेक्ट करेगा। दिस इज दी पल्मोनरी वेन में ये ऑक्सीजन जाएगा। दिस इज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जस्ट वो वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, बाकी सारों में डीऑक्सीजनेटेड है। अब ये ऑक्सीजन आएगा हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच अकर इन द सैक, अल्वेओलर सैक। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो लंग्स वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे, कितना वॉल्यूम्स है लंग्स का, और कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कितना कैपेसिटी है। जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, नॉर्मली जो हम रिस्पायर कर रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, हम 500 ml ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं नॉर्मली। सो दिस इनटेक ऑफ 500 ml कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द 500 ml। नॉर्मली हम कितना इनहेल कर रहे हैं? 500 ml। ओके, लेट्स सपोज हम डीप ब्रीथ करें, हम डीपली जो है रिस्पायर करें और फोर्सफुली हम रिस्पिरेशन करें, तो हम 3000 ml ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे फोर्सफुली, विच इज कॉल्ड द इनहेलेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3000 ml हम ऑक्सीजन को फोर्सफुली इनटेक कर रहे हैं। ओके, लेट सपोज हम फोर्सफुली जो है वो एक्सहेल करें, फोर्सफुली ऑक्सीजन को निकाले अपने लंग से, तो वो हम कितना एक्सहेल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं 1200 ml को हम एक्सहेल कर रहे हैं। जब हम लंग से फोर्सफुली एक्सहेल करें ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन रहता है लंग्स में, फिर भी ऑक्सीजन रहता है लंग्स में, वो कितना रहता है? वो 1300 ml रहता है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो 1300 ml फिर भी हमारे लंग्स में रहता है। सो दिस इज द वॉल्यूम कि हम नॉर्मली 500 ml इनहेल कर रहे हैं, और अगर हम फोर्सफुली इनहेल करें, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें, तो हम 3000 ml इनहेल कर रहे हैं। अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल करें तो हम 1200 ml एक्सहेल कर रहे हैं, फिर भी जो ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है, जो प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, वो 1200 ml ऑक्सीजन पड़ा रहता है, जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम, दिस इज द ग्राफ लाइक। ओके, okay, let's suppose this is the normal respiration. This is the normal respiration. This is the tidal volume. Okay, we intake 500 ml. Let's suppose हम forcefully inhale करें, हम ये normal inhalation कर रहे हैं या हम forcefully inhale करें, means this is the 3000 ml which is called the inhalatory reserve volume. अब let's suppose आगे फिर हम forcefully exhale करें, let's suppose हम forcefully exhale करें, तो हमारी बॉडी में जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, जो लंग्स का जो कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो 1200 ml है। ओके, और अगर हम एक्सहेल करें फोर्सफुली, तब भी हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन पड़ा रहता है वो 1300 ml रहता है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो हम थोड़ा लंग्स के बारे में पढ़े। लंग्स, द राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स। ओके, द राइट लंग्स हैविंग 3 lobes, 1 2 3 having 3 lobes. The right lungs having 3 lobes and 2 fissures. This is the fissure, this is
two fissure. This fissure is the oblique fissure, and this is the transverse fissure. Transverse fissure. The right lungs having 3 lobes and 2 fissure, and the left lungs having 2 lobes and 1 fissure. This fissure is the oblique fissure. Oblique fissure and having 2 lobes. Here is the notch in the left lungs, which is called the cardiac notch. Cardiac notch. The cardiac notch is the for the apex of the heart. Heart का जो apex है वो इस notch में enclose करता है. The membrane which enclose the lungs called the pleural membrane. In between the membrane and the lungs, a fluid which is called the pleural fluid. So this is the